ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عارف والا کے علاقے قبولہ شریف میں سوتن نے سوتن کو ڈنڈے کے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ سمینہ بی بی نے ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن چلایا تھا، جس پر دونوں سوتنوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی عارف والا اور ایس پی انویسٹیگیشن پاک پتن پولیس کی بھاری نفری ہمراہ موقع پر پہنچ گئی اور پولیس نے لاش اور آلہ قتل کو تحویل میں لے لیا۔ مظفر گڑھ کے علاقے شاہ جمال میں درندگی کی انتہا ہو گئی۔ 6 سالہ معصوم بچی کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اوباش نے مبشرہ کو نزدیک کھیتوں میں لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر قتل کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد سجاد اسلم سے۔ سجاد، آگاہ کیجیے گا، کیا کارروائی کی گئی پولیس کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے مظفر گڑھ کے تھانہ شاہ جمال کی حدود میں پیش آیا ہے، جہاں پر درندگی اور سفاکیت کی انتہا ہو گئی ہے، جہاں پر 6 سالہ جو معصوم بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ بچی کے والد کے مطابق اوباش جو حامد رسول ہے، اس نے اس کی 6 سالہ بیٹی مبشرہ کو نزدیک کھیتوں میں لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور زیادتی کے بعد جو بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے قتل کر دیا اور ناش جو ہے وہ کماک کے کھیت میں پھینک دی۔ اطلاع ملنے پر جو شاہ جمال پولیس ہے وہ موقع پر پہنچی اور ملزم کو گرفتار بھی کر لیا۔ ملزم حامد رسول نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے اور شاہ جمال پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جی، مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ بہت شکریہ محمد سجاد اسلم، آپ نے آگاہ کیا۔ پنڈی بھٹیا کے 2 مختلف تھانوں کے حدود میں سی ٹی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ 2 ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پنڈی بھٹیا کے علاقے سکھیکی اور وینی کے تاڑن میں سی ٹی ڈی پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان 2 مختلف پولیس مقابلے ہوئے۔ ڈاکوؤں کے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 ڈاکو زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ ہلاک ہو گئے، جبکہ ڈاکوؤں کے ساتھی رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت احسان اور بلال کے نام سے کر لی گئی اور ملزمان پولیس کو قتل، ڈکیتی، چوری، کاریں چھیننے سمیت مختلف وارداتوں میں مطلوب تھے۔ مانسون بارشوں کی وجہ سے سرکاری دفاتر سمیت مین شاہراہوں میں پانی جمع ہو گیا۔ شہریوں کے لیے تالاب بنی سڑکوں سے گزرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جی نیوز سے ہمارے نمائندے کیسر وند سے۔ کیسر، بتائیے گا۔ کے جو سلسلہ وہ جاری ہے، جبکہ میں موجود ہوں مین جنگ روڈ پر، جہاں پر ڈی پی آفس کے ساتھ ڈی سی آفس اور ساتھ ہی جو ہے تمام تر ادارے بھی ہیں، جہاں پہ 2 فٹ سے زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ بتائیے گا پانی کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا یہاں پہ؟ جی، پانی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تو ہے ہی، یقیناً آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، ہمارے ڈی پی آفس صاحب ہمارے غم میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ یہ پانی ان کے دفتروں سے ہوتا ہوا ہم عوام تک پہنچتا ہے۔ اب اس کے لیے اب ان سے کیا شکایت کریں، وہ بیچارے تو خود مجبور ہیں، وہ خود پانی سے ہو کر گزرتے ہوں گے۔ ہائی لیکس پہ دیکھے پانی پڑے تو وہ تو رنگ خراب ہو جائے گا نا۔ ہم عوام کا کیا ہے، کوئی جراثیم سے مر جائے گا، کوئی ویسے بیماریوں سے مر رہا ہے، تو یہ سارا کچھ نااہلی کسی کی بھی نہیں ہے، یہ نااہلی ہے تو ہم عوام کی ہے کہ ہم ایسے حکمران لے کے آتے ہیں اور ہماری ایسی انتظامیہ جن کے خلاف ہم آواز نہیں کھڑی کر پا رہے۔ جی بالکل، شہری کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی لاپرواہی اور جو ہے ناقص کارکردگی کا پول سامنے آ چکا ہے، جبکہ تمام تر دفاتر کے اندر جو ہے بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے اور تمام روڈ کے اوپر جو ہے تقریباً 2 سے 3 فٹ جو ہے پانی کھڑا ہوا ہے، جس سے ٹریفک کی روانگی بھی متاثر ہے اور شہریوں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی بہت شکریہ کیسر، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ڈیپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت چینی کی مصنوعی قلت کے بارے میں اہم اجلاس ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر، شوگر ملز مالکان، ریٹیلر سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ ڈیپٹی کمشنر ننکانہ محمد تسلیم اختر راؤ کا کہنا تھا کہ شوگر ملز مالکان طلب کے مطابق ریٹیلرز کو چینی کی فراہمی یقینی بنائیں۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز شوگر ملز کے فوری دورے کریں اور اسٹاک کا جائزہ لیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ریٹیلرز کو چینی کی دستیابی ہر صورت یقینی بنوائیں۔ ریٹیلرز کو چینی نہ دینے والے شوگر ملز کو فوری سیل کر دیا جائے گا اور مل انتظامیہ کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ عام صارف کو چینی 173 روپے فی کلو گرام فروخت کی جائے۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے اور مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔
रुख करेंगे भवाना का, जहां के अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों से आसमान पर स्याह बादलों और फजाओं में ठंडी हवाओं का राज है। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात जान लेते हैं अफजल रमाना से। अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, भवाना, अमीनपुर बंगला, जामियाबाद और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अब भी आसमान पर स्याह बादलों और ठंडी हवाओं का राज है। मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से हबास और गर्मी का राज था। बारिश की वजह से हबास और जो गर्मी है उसका जोर जो है वो टूट गया है। शहरियों के चेहरे जो हैं वो खुशी से खिल उठे हैं। मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत में जो है वो कमी आई है। अगर यहाँ पर बात की जाए किसानों की, तो बारिश की वजह से जो किसान है वो इंतहाई खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि चारे की फसल जो है, कमाद की फसल जो है और ख़ास तौर पर जो धान की फसल है, इसको बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बारिश की वजह से नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुतादिद बिजली के फीडर जो हैं वो ट्रिप कर चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों से बिजली जो है वो गायब है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज भवाना का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के दीगर शहरों की तरह आज भवाना में भी बारिश बरसने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया अफजल, आपने तफसीलात से आगाह किया। तौसा शरीफ के करीब लिया तौसा पुल का सुपर टूट गया, जिसके बाद आसपास के बस्तियों को शदीद खतरात लाहिक हो गए हैं। मकीनों ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है सुहेल शहजाद से। जी सुहेल। तौसा शरीफ के करीब लिया तौसा पुल के साथ सिपरबंद टूट गया है, जिसकी वजह से बस्ती शोबे वाला और बस्ती कुबारा को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों में शदीद खौफ और हरास फैल चुका है। इलाका मकीनों के मुताबिक पानी का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया है। बर वक्त इक़दाम न हुए तो बस्तियां ज़ेरे आब आ सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा सर उठाने लगा है। इस मौका पर मकीनों ने हुकूमत और रेस्क्यू इदारों से फौरी मदद की दरखास्त करते हुए कहा कि हम इस वक्त शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं। बचाव के लिए बर वक्त इक़दाम न किए गए तो न सिर्फ हमारी जिंदगियां दांव पर लग सकती हैं, बल्कि हमारे माल मवेशी और घरों को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, कमिश्नर रिरा गाजी खान से फौरी इक़दाम का मुतालबा करते हैं। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। सराय मुगल के नवाही गांव रोडे में तेज आंधी और बारिश के बायस खस्ता हाल दीवार गिरने से 7 साला बच्चा अब्दुल वाहिद जाँ बहक हो गया। अब्दुल वाहिद दीवार के करीब मौजूद था कि अचानक दीवार गिरने से मलबे तले दबकर मौके पर दम तोड़ गया। बच्चे का वालिद मेहनत मजदूरी करता है और खस्ता हाल किराए के मकान में रिहाइश पजीर है। वाक़े के बाद घर में कोहराम बरपा हो गया। अहले इलाका और लवाहिकीन शदीद गमज़दा हैं। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इमदाद की अपील की है। मॉनसून बारिश और दरिया रावी में मुमकिना तुग़यानी के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की जानिब से तांदलियावाला के नशेबी इलाकों खुसूसन माड़ी पतन में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। कैंप मुकम्मल तौर पर फ़ाल और शहरियों को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए हर तरह की तैयारी मुकम्मल किए हुए है। तफसीलात के लिए अली हसन साबरी की ये रिपोर्ट देखिए। के नशेबी इलाके एक बार फिर मुमकिना सैलाबी खतरे की जद में हैं। रेस्क्यू 1122 ने माड़ी पत्तन समेत हसास इलाकों में 2 माह के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। रेस्क्यू एहलकार कश्तियों, लाइफ जैकेट्स, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और दीगर ज़रूरी आलात से लेस होकर 24 घंटे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ज़िले एमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक तरबियत याफ्ता टीमें हर वक्त अलर्ट हैं, जो सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने और हस्पताल रेफर करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। रेस्क्यू 1122 की हेल्पलाइन पर किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी राब्ता की अपील की गई है। मकामी आबादी ने इस बर वक्त इक़दाम को सराहते हुए रेस्क्यू हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। चीचा वतनी थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग सरखना समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए की चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात देखते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद मलिक की इस रिपोर्ट में।
चिचौद ने डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। एसएचओ थाना सिटी नूरेज अब्बास ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग के सरगुना उस्मान वल्द गुलाम रसूल और इसके साथी शाहद वल्द अब्दुल गफार को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से 7 लाख रुपए मालियत की 10 मोटरसाइकिल और नाजायज असला बरामद कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसएचओ थाना सिटी ने कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेगी। कैमरामैन बाबर सिद्दीकी के साथ जुनैद मलिक, नुमाइंदा एनटीए न्यूज़ साहिवाल। और अब ये जानें कि देपालपुर पुलिस ने समाजी खिदमत की मिसाल कायम कर दी। 13 साल से नाराज मियाँ बीवी में सुलह कराकर फिर से एक कर दिया। दोनों फैमिलीज ने डीपीओ ओकाड़ा का शुक्रिया अदा किया। देपालपुर में थाना सदर के एसएचओ गाजी अख्तर खान ने डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत की रहनुमाई में 13 साल से नाराज मियाँ बीवी मोहम्मद इस्लाम और परवीन बीवी को सुलह करवा कर एक कर दिया। दोनों अलहदा होकर जिंदगी गुजार रहे थे। पुलिस अफसरान ने अफाम तफहीम के साथ दोनों खानदानों को सुलह पर आमादा कर लिया और जोड़ी की फैमिलीज ने डीपीओ ओकाड़ा का शुक्रिया अदा किया। खबर है पतोकी से, जहां कत्ल के 2 मुकदमात में इंतहाई मतलूब 3 खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सदर पतोकी पुलिस की एसएचओ मोहम्मद इरशाद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल के 2 मुकदमात में इंतहाई मतलूब 3 खतरनाक इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा 560-25 में कैटेगरी ए के मुजरिम इश्तिहारी मुख्तार सकना चाछोरों को हिरासत में लिया गया और मुकदमे में कैटेगरी ए के 2 मुजरिम इश्तिहारी आमिर और तैयब सकनाए पतोकी ओकाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों मुजरिम इश्तिहारियों को जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। थाना सदर पतोकी पुलिस ने मुलजिमान को मुकदमात में हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। जलालपुर पीरवाला की थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। संगीन जराइम में मुलविस 3 गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। डीएसपी सर्कल मियां अब्दुल रऊफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताना था कि गिरफ्तार गैंग में इरफान उर्फ फाना गैंग, मुनीर उर्फ मलकी गैंग और शहबाज घल्लू गैंग के सरगना समेत 11 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से दर्जनों मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी और असलहा बरामद किया गया। मोटरसाइकिल, नकदी और जेवरात मुद्दइयों के हवाले कर दिए गए। तीनों गैंग हाउस रॉबरी, रोड क्राइम, बाइक स्नैचिंग और डकैती जैसे संगीन मुकदमात में मुलविस थे और शहर भर में क्राइम 35% से नीचे आ चुका है। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल की हिदायत पर थाना चकबेदी पुलिस ने मनशियात सप्लाई की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 12 किलो मनशियात बरामद कर ली है। मजीद जानते हैं राव रमजान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ड्रग फ्री पंजाब के विजन को अमली जामा पहनाते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल चद्दड़ की हिदायत पर पाकपतन पुलिस इन एक्शन। थाना चकबेदी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसएचओ थाना चकबेदी मुनीर बाबर ने पुलिस टीम के हमरा गांव चकबेदी के करीब खेतों में छुपकर मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों मनशियात फरोश अवैस कुरैशी को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 12 किलो चरस बरामद कर ली गई। मनशियात फरोश अवैस कुरैशी के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, एनटीए न्यूज़, पाकपतन। मौसा शरीफ के नवाही इलाके की हुदूद में 4 दरिंदा सिफ्त अफराद की चूड़ियां बेचने वाली लड़की के साथ ज्यादती, बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तौसा शरीफ के नवाही कस्बा रेतड़ा थाना की हदूद में बस्ती बोलानी के करीब 4 दरिंदा सिफत अफराद चूड़ियां बेचने वाली लड़की को असलाह के जोर पर अगवा करके जंगल में ले गए, जहां मुबैना तौर पर बारी बारी उसे ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। बाद अज़ां बेहोशी की हालत में उसे जंगल में छोड़कर फरार हो गए। होरासा लड़की को तलाश करते हुए जब जंगल पहुंचे तो उसे नीम बेहोशी की हालत में पाया, जिसे इलाज मुआवजे के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। होश में आने के बाद लड़की ने बयान दिया कि मुझे 4 दरिंदों ने असला के जोर पर अगवा किया, जंगल में ले गए, मुझे मारते रहे और मेरे साथ जबरदस्ती ज्यादती भी करते रहे। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेतड़ा पुलिस और डीएसपी तौसा मौका पर पहुंच गए। मुलजमान पर अगवा और ज्यादती की एफआईआर दर्ज कर दी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस मौका पर एसएचओ थाना रेतड़ा का कहना था कि मजलूमा को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा और मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे।
واضح رہے کہ ملزم انتہائی بااثر ہیں اور انہیں سیاسی آشیرواد بھی حاصل ہے۔ متاثرہ کا کہنا تھا کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں ڈی ایس پی آفس پونسا کے سامنے خودکشی کر لوں گی۔ متاثرہ کے ورثاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے فوری انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ سوید شہزاد، NTN نیوز، توسا شریف۔ چیچا وطنی میں پولیس موبائل خوفناک حادثے کا شکار، شاہزور ڈالے نے پولیس وین کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار اور 1 شہری زخمی ہو گیا۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے جنید ملک کی اس رپورٹ میں۔ چیچا وطنی تھانہ صدر پولیس کی گاڑی نواحی گاؤں 110 بانل کے قریب ایک خوفناک حادثے کا شکار ہوگی۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس موبائل 15 کی کال پر روانہ تھی اور ایک شاہزور ڈالے نے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ حادثے میں 2 پولیس اہلکار ASI فخر شاہ اور سپاہی طاہر زمان سمیت 1 شہری شدید زخمی ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق شہری کی گاڑی سڑک پر خراب کھڑی تھی اور پولیس وین اس کے پیچھے کھڑی تھی کہ اچانک شاہزور ڈالے نے ٹکر مار دی۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جنہیں فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ساہیوال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی سرکل DSP سلیم رتھ اور SHO تھانہ صدر ملک احمد تبسم کھوکھر باری پولیس نفری کے ہمراہ ہسپتال پہنچ گئے۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار شاہزور ڈرائیور کو موقع پر گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ کیمرہ مین بابر صدیقی کے ساتھ جنید ملک، نمائندہ NTN نیوز ساہیوال۔ حاصل پور میں ہاؤسنگ اسکیم کا سنہرے خواب دکھا کر کئی لوگوں کو ان کے جمع پونجی سے محروم کرنے والا ٹاؤنز مافیا انتظامیہ کے لیے کھلا چیلنج بن چکا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں حاصل پور سے چودھری مدثر کی یہ رپورٹ۔ حاصل پور غیر قانونی مونٹون مالکن کا شہریوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ، بغیر نقشہ منظوری اور ترقیاتی کام کے بغیر درجنوں پلاٹ فروخت کر کے ایک بھائی رفو چکر تو دوسرے بھائی کا پلاٹوں کا قبضہ دینے سے انکاری، جبکہ اپنا گھر بنانے کا خواب لیے اپنی جمع پونجی سے محروم ہونے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ سعود نامی آدمی تھا جس نے 2015 سے یہ ٹاؤن بنایا اور لوگوں سے 68 کروڑ روپے لے کے چلا گیا، لوگوں کو رسیدیں اسٹام وغیرہ دے گیا۔ اب وہ اپنا ڈنکی لگا کے ود فیملی یہاں سے دوڑ چکا ہے۔ پاور آف اٹارنی بھائی کو دے گیا۔ پری پلان پرابلم ہے یہ ساری، یہ ان کا پری پلان منصوبہ تھا اور انہوں نے مل کے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب دوسرا بھائی کہتا ہے میرے بھائی سے بات کرو، جو لوگوں نے کروڑوں روپے دیے یہ کہاں جائے؟ یعنی ہمارے ساتھ نہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ اس نے فراڈ کیا، دھوکہ کیا ہے۔ اب جدھر بھی ہم جاتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ خان صاحب ہمارے ساتھ یہی دھوکہ ہو گیا۔ پہلے تھا سعود بھائی، ٹھیک ہے، سعود چلا گیا، وہ اربوں روپے کا فراڈ کر کے چلا گیا۔ اب یہ آیا، یہ اس سے بڑا فراڈی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں سے پیسے بھی لے لیتے ہیں، پھر وہ ڈولر کے نام پہ دھوکہ دہی کر کے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز دے دیتے کہ ہم دیتے ہیں، آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں۔ شہریوں کی چیخ و پکار پر اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور حامد حمادی نے ایکشن، فوری مونٹون کا وزٹ تو کیا لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہ لا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی غیر قانونی ٹاؤنز ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی تاکہ حاصل پور کے شہری مزید لوٹنے سے بچ سکیں۔ حاصل پور انتظامیہ آج تک تو ٹاؤن مافیا کے آگے بے بس نظر آئی، لیکن نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور سے عوام کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور عوام کی امیدوں پر پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری مدثر حسین، NTN نیوز حاصل پور۔ رخ کریں گے احمد پور شرقیہ کا، جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جاری سروے میں روز بروز خواتین کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ محدود سہولیات کے اور عملے کی کمی کے باعث خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں NTN کے نمائندے عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، بے نظیر احمد پور شرقیہ انکم سپورٹ میں ہم آفس میں موجود ہیں اور یہاں اگر خواتین کی تعداد دکھائیں تو یہ دیکھیں کہ کتنی بینیفیشریز روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور ان کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ اس وقت جو متعلقہ افسران ہیں وہ اپنے کام میں تو مصروف ہے لیکن رش کے باعث ان کو کافی مشکلات ہیں۔ مزید انچارج جو اندر موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے، کتنی پریشانی ہے؟ بینیفیشری باہر جو ہے وہ شور بھی مچا رہے ہیں، سفارشی لوگوں کو اندر آنے دیا جا رہا ہے، اس طرح سے سر ایسی کوئی بات نہیں، جو بیویوں کا کام نہیں ہوتا پہلے سے ہوا پڑا وہ شکایت کرتے ہیں۔ تقریباً ہم 200 سے بھی زیادہ جو ہے نا سروے ڈیلی کے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ آئیں وہ ہم سے جو ہے نا فائدہ لیں۔ اچھا، کتنے روزانہ کی بنیاد پر آپ بینیفیشریز کے سروے کمپلیٹ کرتے ہیں؟ سر 200 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، 200 تقریباً ہو جاتے ہیں۔ باقی جو لوگ آتے ہیں ان کا کسی کا بے فارم اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، کسی کوئی پیسے پوچھنے آتی ہے، کوئی کمپلینٹ جمع کروانے آتی ہے۔ جو کام والی بیویاں ہوتی ہیں نا وہ 100، 150 سے 200 ہوتی ہے پلس۔ ہم ڈیلی کوشش کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب فائدہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے سروے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے؟ سر بے فارم، بجلی کا بل، ان کا موبائل نمبر، شناختی کارڈ،
ये तमाम चीज़ों के अलावा कितने टाइम लगता है पर बेनिफिशरी को अटेंड करने में? आप सर तकरीबन 15-20 मिनट एक सर्वे पे लग जाता है। एक सर्वे पर भी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह से अपना ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन रश के बायस जो है इनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन देखा जाए तो 1300 से 1400 खवातीन रोज़ाना की बुनियाद पर आती हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की जो है खवातीन को मसाइल का सामना होता है। अपनी अगर अहमदपुर शर्किया के ऑफिस की बेनज़ीरी की बात की जाए, अपना वर्क तो किया जा रहा है, लेकिन तादाद जो है वर्किंग की वो अफसरान जो है अपनी तरफ से भारी भरकम कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस हवाले से एक और भी इंफॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि 9 लाख का बेनिफिशरीज को कैंसिल किया गया मौजूदा हुकूमत की जानिब से और 2 लाख बेनिफिशरी को दोबारा सर्वे में इंटर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आपने आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत भवाना के नवाही इलाके चक नंबर 223 रवाना शुमाली में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप किया गया, जबकि हामला खवातीन का अल्ट्रासाउंड भी किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। अफजल बताइएगा। बाना में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत बाना के नवाई इलाके चक नंबर 223 रवाना शुमाली में आज फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मरीजों का जो है वो फ्री चेकअप किया जा रहा है। हमला खवातीन का जो है वो अल्ट्रासाउंड भी किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अली अबरार मौजूद, इनसे बात करते। सर बताइएगा आज के इस कैंप के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आज चक नंबर 223 रवाना में मोहतरमा मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हम क्लिनिक ऑन व्हील पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें मरीज़ों का मुफ्त चेकअप किया जाता है और उनको इसके साथ अद्वियात भी मुहैया की जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के मरीज़ यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, जिनमें टीबी और इसके साथ साथ बच्चों में जैसे एनीमिया की शिकायत होती है, उन बच्चों का इलाज हो रहा है। इसके साथ साथ हामला ख़वातीन उनके लिए अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मुयस्सर है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ लोग जो हस्पताल में नहीं जा सकते थे वो यहाँ पे आके मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ की हेल्थ वर्कर ने हमारा साथ दिया है, जिसकी वजह से मरीज़ों का यहाँ आउटपुट काफ़ी ज़्यादा है। जी मेरे साथ मौजूद डॉक्टर अली इब्रार की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि हम रोज़ाना 100 से ज़्यादा मरीज़ों का जो है वो फ्री चेकअप करते हैं, इनको जो है वो मुफ्त अद्वियात फराहम करते हैं। जी अफजल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम की टीम ने अहमदपुर सियाल के मोहल्ला अमीरपुर में फ्री हेल्थ कैंप लगाकर इलाज मुआलजे की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाएं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की सेहत की दस्तक आवाम की दहलीज पर के नारा को अमली जामा पहनाया जाने लगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम की टीम ने इंचार्ज डॉक्टर मियां अबूजर फरीदका की निगरानी में अहमदपुर सियाल के मोहल्ला अमीरपुर में फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया और 100 से जायद मरीजों का फ्री तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी। हमला खवातीन के मुफ्त अल्ट्रासाउंड किए गए और बच्चों की वैक्सीनेशन भी की गई। जी ये मरीम नवाज सीएम पंजाब की तरफ से क्लिनिक ऑन व्हील्स का फ्री कैंप है, जिसका इनकाद किया गया है आज मोहल्ला अमीरपुर में। 60+ पेशेंट्स का हम फ्री चेकअप कर चुके हैं, उन्हें अद्वियात मुहैया कर दी गई हैं। हमारा टारगेट है कि हम 100-150 मरीज़ों का मुआयना करें और उनको अद्वियात दें, उनके बेसिक जो हैं चेकअप्स वगैरह वो करें। और जो मरीज़ हमारे पास सीरियस आ रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ या जिनको कोई दिल के अमराज लाक हैं, तो हम उनको फिर फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल THP अहमदपुर सियाल रेफर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के दूर रस नतायज बरामद हो रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब के इस प्रोग्राम का भरपूर खैर मकदम किया है। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज़, अहमदपुर सियाल। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया के होनहार तालिब इल्म की आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में कौमी सतह पर शानदार कामयाबी पर कॉलेज पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और इसके साथ साथ खुसूसी तकरीब का भी इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे कमालिया से असद राजपूत। इस्लामाबाद में नेपटेक के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ शोबा जात के मुकाबला जात मुनक्कद हुए, जिसमें चारों सूबों से तलबा व तलबात ने शिरकत की। मुकाबला जात फैशन डिज़ाइनर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन समेत दीगर मुकाबला जात थे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म मोहम्मद वकास ने दूसरी पोजीशन हासिल की, जिस पर इसे 50,000 कैश और एजाज़ी सर्टिफिकेट नाम दिया गया। जी अल्लाह ताला का शुक्र है और मैंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपटीशन विन किया है और GCT कमालिया का शुक्रिया, इस हवाले से मैडम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया जिन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है पूरे पंजाब में।
और हमारी टीचर जो मिस फाइका नईम है यहाँ पे, जिन्होंने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग करवाई और इस काबिल बनाया कि मैंने ये कॉम्पिटिशन विन किया। कॉलेज की जानिब से मोहम्मद वकास के एजाज़ में पुरतपाक इस्तकबाल तकरीब का इनेकाद किया गया। तालिब इल्म पर इदारे के मरकज़ी दरवाज़े पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। तकरीब में तालिब इल्म को आज़ादी शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट बतौर इनाम पेश किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल साहब ने खिताब करते हुए कहा, कामयाबी ना सिर्फ इदारे के लिए बल्कि पूरे कमालिया शहर के लिए बाइस फ़ख्र है। हमारे इदारे के तालिब इल्म ने नेशनल लेवल पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाकर GCT कमालिया को नई पहचान दी है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, नुमाइंदा NTN न्यूज़ कमाली। खबर शामिल करेंगे मियां चन्नू से, जहां का वाहिद स्टेडियम जहां कभी बच्चों की कहकहों की गूंज हुआ करती थी, आज खस्ताहाली और लापरवाही का शिकार है। भयानक तस्वीर बना हुआ है। नशे की लत, गंदगी के ढेर, चोरीशुदा दरवाजे और टूटी हुई सीढ़ियां सब चीख चीख कर इंतजामिया की गफलत की कहानी सुना रहे हैं। देखते हैं एक ऐसी अफसोसनाक हकीकत जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मियां चन्नू से मिर्जा कमर शहजाद। चन्नू शहर का अकलौता स्टेडियम जो किसी जमाने में खेलों के दिलदादा नौजवानों से भरा रहता था, जहां कभी बच्चों के कहकहों की गूंज हुआ करती थी, आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। नशई अफराद ने ग्राउंड को ठिकाना बना लिया है, जहां न सिर्फ मंशियात का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है बल्कि स्टेडियम के दरवाजे, खिड़कियां और सीढ़ियों का लोहा भी चोरी किया जा रहा है। शायकीन के बैठने वाली सीढ़ियां जिन पर कभी तालियों की गूंज हुआ करती थी, आज मलबे का मंजर पेश कर रही हैं। अवाम इंतजामिया की बेहिसी पर शिकवा करते दिखाई देते हैं। ये मियां चन्नू का वाहिद स्टेडियम है, ये टूटा हुआ है। ये इधर नशइयों ने अपना अड्डा जमाया हुआ है। यहाँ पे लोग आने से भी डरते हैं इसी वजह से कि नशई कोई चीज वीज ना मार दें इनको। इंतजामिया का कोई अमल दखल नहीं है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। नशई आते हैं, वहाँ नशा करते हैं। तो भी यहाँ पर आता है बच्चे या बड़े, वो अपने बच्चों को ले जाते हैं यहाँ से, कोई नुकसान ना पहुँचा दें नशई और कोई चीज़ ना मार दें, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर आने से गुरेज करते हैं। ये मियां चन्नू का अकलौता स्टेडियम है, यहाँ पर तबाही मची है। नशइयों ने सरिये निकाल कर बेचना शुरू किए हुए हैं। इंतज़ामिया आती है पर कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। इंतज़ामिया से गुजारिश है यहाँ पर आएँ और कोई रद्द अमल करें ताकि हमारा स्टेडियम बच जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि ग्राउंड को बचाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये नस्ल एक बड़े और कीमती खेल के मैदान से हमेशा के लिए महरूम हो जाए। मिर्जा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। डेरा गाजी खान शहर में 25 किलोमीटर मगरिब की जानिब तहसील को सुलेमान में सैयद सखीद सरवर का दरबार, जहां लोग दूर दराज से जियारत के लिए आते हैं। मजीद जान लेते हैं मौजूद नुमाइंदा NTN न्यूज़ अब्दुल रज़ाक खोसा से। अब्दुल रज़ाक, बताइएगा। आज हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान सखी सरवर और मैं आपको बताता चलूं सखी सरवर दरबार पे हम मौजूद हैं, जो पंजाब में जिसको लाले वाली सरकार से जाना जाता है। और बिलखसूस उर्स के मौके पे, मेले के मौके पे दूर दराज से मनतें मान के यहाँ पे जो लोग फैमिलियों के साथ आते हैं, उनके हवाले से एक भाई साहब हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमारा बलोचकी कल्चर है डीजी खान का, और हमारा इस्लाम, हमारे जो बलोचकी है उसमें क्या हिदायत हैं। दूर दराज से जो फैमिलियाँ आती हैं, अक्सर मैंने देखा अब आज किस्म के चंद आवारा टाइप के जो लड़के या लोग कहें तो फैमिलियों को डिस्टर्ब करते हैं। भाई साहब से बात करेंगे। भाईजान, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह के दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर दरबार पे, सखी सरवर पे मन्नत मानने के लिए, तो उनकी यही ख्वाहिश होती है, मतलब कोई मुख्तलिफ़ किस्म की मन्नतें मानते हैं कि हमारी मन्नत जो है पूरी की जाएगी। जिस किस्म की भी मन्नत मानते हैं, जो दूर दराज से मतलब अपनी फैमिली के साथ आते हैं, कोई बस वगैरह पर जिस सवारी पर भी आते हैं, उनकी फैमिली, उनकी माँ बहनें साथ साथ होती हैं। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे सालाना उर्स पे दूर दराज से लोग आते हैं, फैमिलियों के साथ आते हैं, बड़ी आस उम्मीद लेके आते हैं। लेकिन मायूसी की बात यह है कि यहाँ के चंद आवारा लोग जो फैमिलियों को डिस्टर्ब करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।